नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। चुरुलिया काजी नजरुल इस्लाम का जन्म स्थान है। कुछ साल पहले यहाँ पर एक बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, जिससे लोगों को बस पकड़ने में समस्या ना हो, लेकिन आज भी उस बस स्टैंड से बसों का परिचालन शुरू नहीं हुआ है। इस बारे में जब हमने चुरुलिया ग्राम पंचायत प्रधान प्रदीप मुखर्जी से बात की, तो आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। কারণ কেন? চুরুলিয়ায় বাস স্ট্যান্ডের জন্যে যে জায়গাটা বাছা সেটাকে আমরা ফুটবল সিটিম ফুটবল গ্রাউন্ড বলতাম। পরপর 3টে ফুটবল গ্রাউন্ড ছিল। উপরে যেটা জল ট্যাঙ্কি হয়েছে হাই স্কুলের সামনে, সেটা একটা ছিল, ওটা বি টিম। মাঝে এ টিম ফুটবল গ্রাউন্ড, যেটা আমরা খেলার মাঠ এখন দেখতে পাচ্ছি। নিচে ছিল সি টিম, কিন্তু এটা ব্যক্তিগত মালিকানার জায়গা ছিল। এবারে বাম জমানায় অনেক মালিকই কিছু বলতে পারবে, জায়গা দখল করে বাস স্ট্যান্ড করে স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হয়েছে। পরে দেখা গেল তখন তৎকালীনই যে সেখানে না বেশি বাস দাঁড়ালো, না ওখান থেকে বাস ছাড়লো। এখন তৃণমূল পিরিয়ড এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পিরিয়ড যখন এলো, আমরা যখন 2013-তে পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় এলাম তৃণমূলে, তার আগে সিপিএমের পঞ্চায়েত ছিল, তখন আমরা দেখলাম যে বেঙ্গল এমটা টোটাল মাইন্সটা কেটে দিয়েছে, অর্থাৎ সরাসরি যে চিচুড়বিল যেতাম সেই রোডটা কেটে দিয়েছে। এবং বেঙ্গল এমটার ওই কেটে যাওয়ার জন্যই, বেঙ্গল এমটার ওই রোডটাকে কাটার জন্যই সিপিএম ওইখানে বাস স্ট্যান্ডের এন্ড করে বা ঘুরিয়ে আবার লগা হয়ে ঘুরিয়ে চেষ্টা করেছিল। পরবর্তী ক্ষেত্রে চিচুড়বিলের মানুষ বলল যে না, তো ঘুরে আমরা যাব না। তাই মাইন্সের ভিতর দিয়ে একটা খুবই সংকীর্ণ, কখনো বর্ষাকালে খুবই পেরোনো যেত না এমন রাস্তা, আবার আমরা পঞ্চায়েত থেকে করতে গিয়েছি, আমাদের পিডাব্লিউডি রাস্তাটা করতে গিয়েছে, তখন বাধা এসেছে কোম্পানি থেকে যে জায়গাটা আমরা না পঞ্চায়েত থেকে না পিডাব্লিউডি থেকে মাইন্সের ভিতর দিয়ে রাস্তা। এখন পিডাব্লিউডি, পিডিসিএল এবং এএমপিএল যে দুটি সংস্থা এসেছে, তারা নিজেদের স্বার্থেই বলুন, মানুষের স্বার্থেই বলুন, আবার রাস্তাটা নতুন করে নির্মাণ করেছে। তাই এখন আর যে বাস স্ট্যান্ডের কোনো হবে কি না সেটা অনেক দূর অন্ধকারে আছে। কারণ বাস স্ট্যান্ডের জন্য 2-3টা শেডও ঢালাই শেড নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলো এখন পড়ে আছে। বাস ওইখানে এসে এন্ডও হয় না। এখন ওই ওসিবির ভিতর দিয়ে যে রাস্তা, সেখান দিয়ে পালডাঙ্গা অজয়ঘাট পর্যন্ত যায়। তাই এখন বাস স্ট্যান্ড ওখানে হবে বলে আমাদের ধারণাই না। কারণ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুরুলিয়া হসপিটালকে স্পেশালিটি হসপিটাল আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটককে বলেছেন হ্যাঁ হবে। আরও বেশ কিছু উন্নয়নের জন্য বলেছি। হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে, হেরিটেজের একটা দেখবেন ভিআইপি রোডও তৈরি হয়েছে। আরও প্রদর্শনী কক্ষ, চুরুলিয়ার বরচাইপাড়ায় মামাকালী মন্দির, সবই হেরিটেজ ডিপার্টমেন্টটা তৈরি হবে, আমরা তৎপর আছি। কিন্তু বাস স্ট্যান্ডের ব্যাপারে যেহেতু ওইটা সম্পূর্ণ আমার ওই যতটুকু আপনাকে বললাম যে বেঙ্গল এমটা কাটবে বলে হয়তো তখন বাস স্ট্যান্ডটা নির্মাণ করা হয়েছিল। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जमुड़िया के बीएलआरओ दफ्तर में बालू के अवैध उत्खनन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इनका कहना है कि जमुड़िया में अजय नदी से मशीन के जरिए बालू का उत्खनन किया जा रहा है। इसे लेकर बीएलआरओ से शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रशासन की तरफ से बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आनाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आनाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। ट्रांसमीटो डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से एक परियोजना चलाई जाती है। इसे लेकर आज आसनसोल के सेंड्रले रोड इलाके में संगठन के कार्यालय में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहाँ पर संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नदीम, डायरेक्टर विजय पंडित, ऑपरेशन हेड शाकिर अली, CSR डिपार्टमेंट के हेड आफ्ताब सिद्दीकी, बैक ऑफिस हेड शब्बीर अहमद के अलावा संस्था के वरिष्ठ कमेटी मेंबर उपस्थित थे। ये कमेटी मेंबर पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आए थे। यहाँ पर मोहम्मद नदीम ने बताया कि उनकी संस्था को पंजीकृत हुए 2 साल हो गए हैं। उनकी संस्था मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में सहयोग करना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 100% स्कॉलरशिप योजना शिक्षा दान को लॉन्च किया गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा। मेरा नाम मोहम्मद नदीम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रांसमीटो डेवलपमेंट फाउंडेशन, कार्यक्रम सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ देना चाहूँगा कि हमारी संस्था जितने भी हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में जुड़े हुए कुटीर उद्योग एक खास कार्यक्रम में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की चूँकि उनको सही से जानकारी नहीं मिल पाई थी और बहुत सारी जानकारियों के अभाव के कारण भ्रमित थे। उनके जो हमारे सीनियर सोशल वर्कर हैं वो भी परेशान थे। तो उसको लेकर के कमेटी के सभी सदस्यों ने बैठ करके एक राय किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि उनकी सभी की सदस्यता रद्द कर दी जाए और नए तरीके से सदस्यता उनको ग्रहण कराई जाए, जिसमें जितनी भी राशि उन लोगों ने जमा किए थे सदस्यता ग्रहण करने के लिए, जो भी राशि जमा किए थे वो अप्रैल 2025 और उसके बाद सभी का निष्कासन होगा, उनके राशियों का निष्पादन होगा। ये एक गुड न्यूज़ है कि उनकी दी गई राशि चूँकि संस्था में दान स्वरूप आती है, लेकिन संस्था ने कहा कि उनको निष्पादन करके नए तरीके से सदस्यता ग्रहण करवाएंगे और साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री को यानी कि कुटीर उद्योग को एकदम नए आयाम, नए नियम, नए शर्तों के साथ लागू करेंगे। और कॉटेज इंडस्ट्री को द राइजिंग सन बोल करके एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया जा रहा है और उसमें आप सभी के लिए स्वागत है और ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके तहत आपको तरह तरह के कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ में हवा में खेती
कैसे किया जाए, बिना मिट्टी का हवा में कैसे खेती किया जाए, इसको सीखने का भरपूर मौका मिलेगा। और ये ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाने का, जो कि बाजार से बेहद कम मूल्य में यानी कि बेहद कम खर्चे में ये सब्जियां उग जाती हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा विकसित बाजार भी आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ हमारी संस्था सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर रही है, SHG बनाने की तैयारी शुरू कर रही है। SHG के माध्यम से उनको हम लोग ग्रुप लोन दिला करके उनको हम लोग आर्थिक रूप से प्रबल करेंगे और मदद करेंगे ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सकें। दोस्तों, इस पूरी जानकारी के बाबत मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी संस्था के पास उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 6000 सीटें हैं। ये 6000 सीटें पॉलिटेक्निक, बीटेक या पैरामेडिकल कोर्सेज, MBA, BBA, B.Ed इस तरह के कोर्सेज को करने के लिए, इवन LLB करने के लिए भी ये हमारे पास फंड है। तो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे इच्छुक माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे का अभाव है, वो कॉलेज की फीस नहीं जमा कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे का मार्क्स 50% अगर है तो इसमें कोई बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए वो हमारे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हम लोग को मौका दे सकते हैं। उनके बच्चों को पढ़ाने का जो फीस होता है वो टोटल फीस हमारी संस्था इसका खर्च वहन करेगी। और पूरे देश में करीबन 100 से ज़्यादा कॉलेजेस में हम लोग बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ नियम और शर्तों के साथ, जिसमें 50% का मार्क्स होना अनिवार्य है और दूसरा कि उन्हें हॉस्टल में रह कर पढ़ना अनिवार्य है और दूसरे राज्य में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको लेकर के हम लोगों ने बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगर आप में से कोई भी ऐसे माता पिता हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, वो बिल्कुल हमारी संस्था को संपर्क करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनके बच्चों को पढ़ाने का भरपूर मौका देंगे। धन्यवाद। आपने कहा कि संपर्क करेंगे, तो संपर्क कैसे करेंगे आप लोगों से? हमारी संस्था का जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो तो राजस्थान जयपुर है, लेकिन इसके लिए पश्चिम बंगाल में हमारा हेड ऑफिस है और इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए एक खास डिपार्टमेंट ही ओपन किया, करुणामयी स्टेट, जो कि HLG हॉस्पिटल आसनसोल, HLG हॉस्पिटल के करीब में ही है। वहाँ पर हमारा कार्यालय है। हमारे कार्यालय में वो आकर के संपर्क करेंगे फ़ोटो और क्वालिफिकेशन का जेरॉक्स कॉपी के साथ। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि संस्था में उनको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और दान स्वरूप संस्था में उनके पेरेंट्स को 5000 रुपया डोनेशन के तौर पर राशि अदा करनी होती है। और आपने जो कहा कि हवा में खेती, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। हवा में खेती करना, मान लो कि ये एक स्वप्न जैसा होगा, लेकिन 2 फीट बाई 2 फीट में करीबन 40 पौधे का हम लोग, एशिया की जितने भी प्रजाति के सब्जियां होती हैं सारी सब्जियों का हम लोग उत्पादन कर सकते हैं और वैसी सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ज़मीन के अंदर जैसे आलू हो गए या फिर ओल हो गया, उनका उत्पादन नहीं करते। ज़मीन के ऊपर जैसे हरी मिर्च हो गए, कद्दू है, नेनुआ है, करेला है, बीन्स है, ये सारी सब्जियों को उत्पादन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक एरोफोनिक टावर होता है और उस एरोफोनिक टावर में 40 पॉकेट होते हैं और इन पॉकेट में हम लोग सब्जियों को डाल देते हैं और इस पॉकेट में सब्जियां उगती हैं, उनकी जड़ें हवा में लटकती है। जबकि नीचे बाल्टी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग पानी में उस पौधे का न्यूट्रिशंस मिला देते हैं जिससे पौधा डेवलप करता है। और इसमें बता दें कि करीबन 20 गुना कम पानी खर्च किए, ना के बराबर मेहनत करके, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करना है, ना के बराबर मेहनत करके। इवन मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक सब्जियों को उत्पादन लेते हैं जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं और किसी भी तरह का यूरिया, सल्फेट और भी DAP का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है और रोजगार का एक सशक्त माध्यम है। आपके जो संस्था है, संस्था के अपना नाम बताइए और संस्था यहाँ पे जो प्रेस मीट में है उनका जरा परिचय दीजिए और आपकी संस्था भी देश के किन किन राज्यों में काम कर रही है? जी, हमारी संस्था का नाम ट्रांसमिटिव डेवलपमेंट फाउंडेशन है और हमारी संस्था अभी 28 दिसंबर 2022 को पंजीकृत हुई थी। करीबन 2 साल, हमारे संस्था के 2 साल के ऑडिट रिपोर्ट पूरा हो चुके हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे संस्था के डायरेक्टर श्री विजय पंडित जी और हमारे संस्था के ऑपरेशन हेड श्री शाकिर अली जी, हमारे CSR डिपार्टमेंट के हेड आफ्ताब सिद्दीकी जी, हमारे बैक ऑफिस के हेड श्री शबीर अहमद साहब और हमारे उच्च श्रेणी के यानी कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो हेड होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि कमेटी मेंबर्स, वो कमेटी मेंबर में हमारे साथ इस प्रेस मीट में जो उपस्थित लोग हैं, मैं आपको बता दूं, श्री तरुण सरकार जी, श्री सरोज दत्ता जी, प्याली जी, राहुल जी और रीना मैडम उपस्थित हैं यहाँ पर और हमारे क्या बोलते हैं कि सिकंदर अली साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, अबू बकर सिद्दीकी साहब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, वो उपस्थित हैं, शुभ्रा दास जी उपस्थित हैं और इसके अलावा मैं आपको बता दूं रिपन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, असलम जी यहाँ पर उपस्थित हैं, असलम जी के बाद जमील साहब उपस्थित हैं,
अनिल कुमार जी उपस्थित हैं और अमित जी जो कि बिहार से आए हैं वो उपस्थित हैं। उच्च शीर्ष पद पे हमारे संस्था में ऑल ओवर इंडिया के कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ही कम समय में ये प्रेस मीट ऑर्गेनाइज किया गया। मैं बता दूं, हमारी संस्था अभी वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह पर अपने सदस्यों के साथ मिलकर जोरदार तरीके से काम कर रही है। नमस्कार, আমার নাম রিপন কুমার রায়। আমরা ট্রান্সমিটার ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের একটা টপ লিডার্সের মধ্যে আমরা আজকে যে যতজন এসেছি সবাই এসেছি এখানে। আমাদের একটাই মিশন যে আমরা সোশ্যাল ওয়ার্কের হিসাবে কাজটা করছি পুরো অল ইন্ডিয়াতে। বিগত আমরা 2022 থেকে আমরা রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরে সংস্থা আমাদের কাজ করেছি, আমরা গ্রামে গঞ্জে প্রচুর কাজ করেছি। আমরা একটা কটেজ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমরা প্রথম স্টার্ট করেছিলাম। সেই কটেজ ইন্ডাস্ট্রি বিগত আমরা প্রচুর লোককে আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টও করেছিলাম। তার মধ্যে আমরা অনেককে সহায়তা রাশি বা অনুদান হিসাবে কিছু আমরা তাদেরকে পুঁজিও দিয়েছিলাম নিজে পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু মার্কেটে দেখা গেল ওই প্ল্যানটাকে কোনো কারণে আমরা স্টপ করেছিলাম, কারণ মার্কেট একটা মিস সেলিং হয়ে গেছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আপনি আসুন, আপনাকে স্কিল ডেভেলপ করিয়ে নিজে পায়ে দাঁড়া করিয়ে আমরা আপনাকে স্বরোজগারে যুক্ত করতে চাই। কিন্তু বিগত কিছু মিস সেলিংয়ের জন্য আমরা এই প্রজেক্টটাকে স্টপ করলাম, বন্ধ করিনি। ফির আমরা রিমডিফাইড করে এই সময় একটা লিগালিটি ফর্মালিটিস তৈরি করে একটা রুল রেগুলেশন মেনটেন করে আমরা এই সিস্টেমটাকে আবার রিলঞ্চ করেছি। কারণ এই প্রজেক্টটা আমাদের হচ্ছে গোল্ডেন প্রজেক্ট, যেখানে আমাদের নিরীহ প্রকৃতির লোককে যারা আনএমপ্লয়েড তাদেরকে কিছু রোজগার দিতে পারি। ঘরে বসে তারা ছোট ছোট রোজগার করতে পারবে, তাদেরকে ছোট ছোট স্কিল ডেভেলপ করিয়ে বিগত অনেক রকম যে কুটির শিল্প, যেমন হ্যান্ড ওয়াশ, ডিশ ওয়াশ, ক্লথ ওয়াশ, আমাদের এলইডি বাল্ব বা বাথ সফ, ডিটারজেন্ট পাউডার, লিকুইড ডিটারজেন্ট, এই ডিফারেন্ট টাইপের আমরা প্রোডাক্ট তাদেরকে তৈরি করে তাদেরকে সেই ব্যবস্থাটা করছি যেন নিজেরা রোজগার করুক। তার সাথে সাথে সংস্থা আগামী দিন আমরা আরেকটা স্টেপ নিচ্ছি, যারা যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবে সেই প্রোডাক্টটাকে কী করা যাবে, সেই প্রোডাক্টটা যেন তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সেই প্রোডাক্টটাকে আমরা বাজারে ব্যবস্থা করছি। সংস্থা আমরা সেই চিন্তাধারা করছে যে হতে পারে আমরা হয়তো ডিসেম্বরে জানুয়ারির মধ্যে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করব যে তারা সেই প্রোডাক্টটা তৈরি করে সেই বাজারটা তাদেরকে দেবো, তারা যেন সেই বাজারে প্রোডাক্টটাকে বিক্রি করতে পারে। এই প্রোডাক্ট আমরা কখনো কিনবো না, আমরা কখনো এটার মধ্যে প্রফিটও রাখবো না। আমাদের উদ্দেশ্য তাদেরকে যে পুঁজিটা দিচ্ছি সেই পুঁজিতে প্রোডাক্টটা তৈরি করে সে নিজে প্রফিট যাই লাগিয়ে সেটা যেন বাজারে সে ডাইরেক্ট প্লেস করুক, যার মধ্যে কোনো আমাদের স্টকেজ থাকবে না, কোনো আমাদের সিএনএফ থাকবে না, কোনো হোলসেলার থাকবে না। সে ডাইরেক্ট প্রোডাক্টটা আমাদের বাজারে যাবে আর বাজারে সেই প্রোডাক্টটা আমাদের কনজিউমারের মাধ্যমে যাবে। তাতে সুবিধা হলো সেই প্রফিটটা যেন সেই যারা তৈরি করছে তারা যেন এই পায়। বিগত আরও প্রজেক্ট আছে আমাদের অ্যারোফোনিক এগ্রিকালচার, যে স্যার বলেছেন যে একটু আগে যে আমাদের অ্যারোফোনিক এগ্রিকালচার হাওয়াতে চাষ করা, একটা বিশাল একটা প্রজেক্ট নিয়ে এসেছি, যেটা আজকে ডেটে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা যে সবজি খাচ্ছি সেই সবজি বীজ খাচ্ছে, কারণ এটার মধ্যে প্রচুর ইউরিয়া, প্রচুর ফসফেট, ডিএফএ দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু আজকে যে ফসলটা আমরা অ্যাওয়ারনেসে গভর্নমেন্টও আজকে যেটা আমাদের সাপোর্ট করছে কি অর্গ্যানিক চাষ করো, কিন্তু আজকে অর্গ্যানিক চাষ করতে গেলে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাটিতে অর্গ্যানিক চাষ করতে হলে প্রচুর এক্সপেন্সিভ। তো আজকে এনজিও আমাদের একটা মিশন তৈরি করেছে যেটা অ্যারোফোনিক টাওয়ার উপরে, স্যার হয়তো বলেছেন, আমরা শুনেছেন যে আমরা 2 ফুট বাই 2 ফুট জায়গার মধ্যে আমরা তার জন্য তাতে 40টা গাছ লাগানো হয়, যেখানে আমাদের মাটির উপরে যত সবজি আছে এশিয়া কান্ট্রি সব সবজি আমরা চাষ করতে পারি। নট ইভেন তাই, এবার এই সবজিটা চাষ করার জন্য বাজারে ব্যবস্থাও আমরা করছি। তাতে কী হচ্ছে যে অর্গ্যানিক ফসলটা দিতে পারলাম, প্লাস এখানে একটা আমরা রোজগার দিতে পারলাম। এই জন্য জায়গার কোনো দরকার নেই, আমি ছাদে করতে পারি, ব্যালকনিতে করতে পারি, আমি বারান্দায় করতে পারি। এটা প্রচুর একটা ভালো লো এক্সপেন্সের বিশাল একটা প্রবলেম। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি স্যার আমরা তো টপমোস্ট, আমাদের প্রত্যেকটা ট্রেডটাই দেখতে হয়, এক একটা জায়গায় ডিপেন্ড। আমাদের কাজে কোনো বাধ্যতা নেই যে তুমি এটাই করতে হবে, আপনাদের এটাই করতে হবে, কোনো বাধ্যতামূলক না। আজকে প্রচুর টাইপের আমাদের একটা যে প্রচুর টাইপের যে প্রজেক্টগুলো আছে, যেই যেটা ইচ্ছা সেটা নিয়ে কাজ করতে পারে। নেক্সট, আমার নাম রিপন কুমার रॉय फ्रॉम धनबाद। सर, मैं मोहम्मद असलम अंसारी, मैं बेसिकली आसनसोल का रहने वाला हूँ और ट्रांसमिट डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ पिछले 2 साल से सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ। और ट्रांसमिट डेवलपमेंट फाउंडेशन का जो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार की तरफ उत्साहित किया है। और सिर्फ उत्साहित नहीं किया, उन लोगों को हम लोगों ने हाथ का हुनर भी सिखलाया है और हुनर के साथ साथ उन लोगों को नए नए विषयों पे काम करने के लिए उत्साहित भी किया है। इसके साथ हम लोगों ने एक वर्चुअल बाज़ार मतलब ई कॉमर्स बाज़ार का भी
सपोर्ट देने का रास्ता बनाया है, ताकि वो लोग अपना बनाए हुए उत्पाद किए हुए सामग्री को आराम से आके हमारे बाज़ार में बेच सकें और इसमें कोई बिचौलिया ना हो, वो डायरेक्टली बनाए और डायरेक्टली कस्टमर तक इसको पहुंचा सके, इसका हम लोगों ने इंतजाम किया है। इससे हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन सबको दिया है कि अभी हर कोई नौकरी नहीं पा सकता, लेकिन हर कोई अपना नया स्टार्टअप कर सकता है। तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन सपोर्ट इंडिया की तरफ से हम लोगों ने स्टार्टअप के लिए एक नया आयाम जोड़ा है और इसमें हम लोगों ने लाखों लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवाया है और उन लोगों को सर्टिफिकेट देने के साथ साथ हम लोगों ने हमसे जितना हो सका उसको आर्थिक मदद भी किया है और ये आर्थिक मदद देने के बाद हम लोगों ने उसको अपने बाज़ार पे अपने सामान को बेचने का एक सुविधा भी दिया है। इसी कार्यक्रम को पूरे 2 साल से हम लोग पूरे इंडिया में चला रहे हैं, कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद असलम अंसारी, आसम। हेलो भाई, मेरा नाम अनीता भारती है। मैं भागलपुर ज़िला के रहने वाली हूँ और ब्लॉक सबौर है। मुझे राजेश सर और अमेश सर के द्वारा ये बताया गया था कि हवा में खेती होती है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ था। एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें छोटा छोटा पौधा था। आज देखिए मेरा पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया। ये देखिए मिर्ची का गाछ, मिर्ची के गाछ में भी फूल निकल आए हैं। ये देखिए मेरा करेला, ये देखिए करेला भी मेरे हो गया है कितना बड़ा बड़ा। ये सब बिल्कुल बिना मट्टी का खेती है। ये देखिए मेरा कद्दू का गाछ, कद्दू में भी फूल आ गया है। इधर मेरा बस बोरा का गाछ है। फिर इसमें धनिया था, आप लोग देखे थे, जो कि मैं धनिया यूज करके इसमें फिर मैं भिंडी लगाई हूँ, कद्दू लगाई हूँ और बस बोरा लगाई हूँ। और ये सब देखिए ये बिना मट्टी का भी खेती संभव है। और आज मैंने करके दिखाया कि हाँ, बिना मिट्टी का भी खेती हो सकता है, हवा में खेती हो सकता है। जिस समय राजेश सर बताए थे तो हमको भी लगा था कि कहीं वो हमसे क्या करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि नहीं, बिना मिट्टी का भी खेती हो सकता है। थैंक यू गाइड। जमुरिया ओसीपी में आज सेफ्टी वीक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। खदान में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। डीजीएमएस अधिकारी अजय यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। আসলে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অতটা সাজেও ছিলাম না, বুঝলে তো? আচ্ছা, তো এই মাইন্ডসেট ভিতরে আমার তো মনে করো কোনোদিন যায় না, তাই এই ব্যাপারে আমার অতটা আইডিয়া না। ঠিক আছে কি ব্যাপার, তোমরা এখন এখানে বসে রয়েছো, একটি নিয়ে প্রোগ্রাম তো শুরু হবে একটু। एक थोड़ा चाय पीना है, अभी चाय पी के चलते हैं ना। হ্যাঁ চলো চলো। এই বিশুদা, বলছি তন্ময়কে দেখলে? ওকে আজ ডিউটিতে এসছে? হ্যাঁ এসেছে তো, এই তো কিছুক্ষণ আগে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে দুজনে মিলে ওয়ার্কশপের দিকে যাচ্ছে। দেখি তাহলে ফোনটা করে। হ্যালো হ্যালো, মোবাইল মাগে মন আমার রেডি যেতে হবে না। দাও, তিনজন আগে তিনটা চা দাও দেখে। কাল বিকালে যে চায়ের দামটা না দিয়ে ফুটি দিলি, ওটা কে দিবে? আরে বাবা, ঢুকো পালাই দিছি নাকি? আরে পয়সাই তো নিবে, জীবন তো নিবে না। তোমরা এখন এখানে চা খেতে এলে, সেফটি প্রোগ্রামে যাবে না? আরে ওইসব বাতানাবাজি কেন শুনতে কে যাবে তোমাদের? বাতে না বাজি, তবে না দেখি। আরে বাবা, ওইরকম লেকচার কলেজ লাইফে অনেক শুনেছি, শুনে কান গালা পচি গেল, আর ভালো লাগে না। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে কোম্পানি এই সেফটি প্রোগ্রামে এত টাকা খরচ করে অনেক বড় বোকামি করছে। সেটা তুমি জানো, তোমার ওই কোম্পানি জানে। কোম্পানি সব জানে, কে কাজ করে, কে ফাঁকি মারে, কে মাতব্বরি করে, আর কে ধান্দাবাজি করে। ওই বিশুদা, তুমি এটা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললে নাকি? কেন রে, তোর এরকম কেন মনে হলো? আমি তো কারোর নাম বা কাউকে ইঙ্গিত করে কিছু বলিনি। তুমি কারোর নাম না নিলেও ফাঁকিবাজ, ধান্দাবাজ, মাতব্বর এই কথাগুলো তো উল্লেখ করেছো। আরে বাবা, সেই হিসাবে ধরলে তো যারা কাজ করে আমি তাদের কথা বলেছি। তারা হয়তো কাজ করে না, তাই तारा ईस्ट वेस्ट में हम लोग शिफ्ट का स्टार्टिंग में सुरक्षा प्रतिज्ञा पढ़कर प्रतिज्ञा, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। पालन करने हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। मैं प्रबंधन द्वारा तय किए गए एसओपी और सीओपी का पालन करूंगा।
मैं शून्य क्षति दक्षता प्राप्त करने हेतु बस ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके फलस्वरूप मैं या खदान में मेरे सहयोगी खतरे में पड़ जाए या खदान एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आईएसओ से एनके सिंह साहब, जिस तरह से हम लोगों का स्वागत किया गया, उसके बाद आप लोगों ने प्रदर्शनी के लिए यहाँ बना के रखा हुआ है, किस तरह से आप कोयला उत्पादन करते हैं उसका मॉडल बनाया हुआ है। उसके पश्चात कुछ सुरक्षा के उपकरण थे, साथ में ही एक सुंदर पंडाल भी बना हुआ है जहाँ पर सभी लोग इस उत्सव का आयोजन ले रहे हैं। काफी अच्छे कल्चरल प्रोग्राम भी हुए। तो एक खुशनुमा माहौल में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो कोल कर्मी हैं, जो कोयला उत्पादन करके हम लोगों का घर रोशन करते हैं, पूरे भारत को रोशन करते हैं, उनके घर में कोई दिया न बुझने पाए। उनके घर का जो चिराग है वह सदैव जलता रहे, यही इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ हम लोग तारा ईस्ट एंड वेस्ट कोल माइंस, जो कि WBPDCL के अंतर्गत है, यहाँ आज हम लोग अपना एनुअल सेफ्टी वीक मना रहे हैं। DGMS के गाइडलाइंस में प्रति माह माइंस की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग और हर कोलरी में जहाँ पे भी खनन होती है, चाहे भूमिगत हो चाहे खुली परियोजना हो, वहाँ पे खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है प्रति साल में एक बार। तो एक सप्ताह का ये कार्यक्रम रहता है। इसी के दौरान, इसी के निमित्त आज हमारे इस तारा ईस्ट एंड वेस्ट कोल माइंस WBPDCL चुरुलिया में आज विभिन्न DGMS के और विभिन्न कोलरी के अधिकारियों का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे DGMS साहब जो है वो आए हुए थे, मतलब डायरेक्टर मैकेनिकल यादव साहब आए हुए थे, और उसके बाद कनुस्तूरिया एरिया से आए हुए थे, ISO साहब आए हुए थे सलानपुर एरिया से, केंदा एरिया से, और जो है यहाँ पे तारा के जितने भी अधिकारी थे उपस्थित थे। तो इसी के निमित्त प्रथम सत्र में जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ पे हुआ है। और अब ये पूरी माइंस में जितनी भी कार्य होती है, छोटे छोटे कार्यों से, जो खनन के कार्य से लेके मैकेनिकल का जो कार्य होता है, वर्कशॉप का कार्य हो, चाहे वो पंपिंग का कार्य हो, चाहे सब स्टेशन हो, इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है, जो मजदूर जो यहाँ पे कार्य करते हैं उनके लिए कुछ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, संवैधानिक रिकॉर्ड्स है, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा सब माइंस में अलग अलग विभिन्न टोलियों में टीम जाके निरीक्षण करती है। आज जो है हमारे यहाँ पे आज 19 नवंबर को आज हमारे यहाँ पे निरीक्षण था। तो यहाँ पे विभिन्न कोलरी के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद अब माइंस के निरीक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। वो लोग जाएंगे माइंस में, देखेंगे कि हम क्या सुरक्षा अपना रहे हैं, कि माइंस एक्ट 1952 का कितना हम पालन कर रहे हैं। और आज जो प्रोग्राम है उसमें DGMS साहब क्या बोले हैं आप लोग का ये सब देख कर? वो बोले कि जो सुरक्षा ट्रायंगल है हमारा, वो सुरक्षा के 3 मानक हैं, तो उसको हम लोग को सबको पालन करना है, आगे भी हम लोग को ध्यान रखना है। और जितने भी गाइडलाइंस आते हैं, DGMS के सर्कुलर्स आते हैं, उसका हम सबको ध्यान रखना है। आपका नाम? हमारा नाम आयुष कुमार तिवारी, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत है। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल
इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।